ଭିତର ବାହାର ସମାନ ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛି ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଫିଲୋସଫି, ମୋର ନୁହେଁ। କହିଲେ ତୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବନାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତେବେ ତୁଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏ ଗଣ୍ଡି ତିନିଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ କର୍ମ ବହନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହବ। ତେଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ, ତାପରେ ଭାଷାରେ ସମର୍ପଣ। କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଭାଷାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଭାଇ ଭାଇ କି କଥା କହିବ ଯେ ଆଘାତ ପାଇକରି ସିଏ କହିବ ଯେ ଜାଗାକୁ ମୋଟେ ଆଉ ଆସିବିନି। ସିଏ ନ ଆସିଲେ ଦାୟୀ କିଏ ହେଲା? ସିଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ସିଏ ତ ଦୋଷୀ ହେଲା। ଯିଏ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ବନ୍ଧୁକ ମାରି ତଡ଼ିଲା ସିଏ ବି ଦାୟୀ। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ଭାଷା ଯେପରି ତୁଚ୍ଛା ବା କଳଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ନ ହୁଏ ରେ ଚରଣ। ତେଣୁ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ, ଭାଷାରେ ସମର୍ପଣ ଆଉ କର୍ମରେ ସମର୍ପଣ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଝାଡୁ ମାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଥିଲା ବେଳେ ଝାଡୁଟା ଧରିକି ମାରି ପକେଇବେ ଝାଡୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଆଜିକାଲି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋ ସେବା କେବେ ନ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ମୁହଁରେ ଘାସ ଦେଇକରି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଲୋକ କହିବେ ବଡ ଗାଈ ମାତାର ସେବକ, ଗୋ ମାତାର ସେବକ ଆଉ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ କେହି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯଶ ଅର୍ଜନ। ଯଶଟା କିଏ କାହା ପାଖରେ ଅର୍ଜନ କରିବ? ମଣିଷ ପାଖରେ। ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କଲ, ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଖାତାରେ ଜିରୋ। ଲୋକ ଖୁସି ହଉଛି ମତେ ଏତେ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲି। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ନମସ୍କାର, ବାବୁ ନମସ୍କାର, ଇଲୋ ବାବା ଭିତର ଫାଙ୍କା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଦେଖେଇ ହେଲେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବ, ନ ଦେଖେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ନିରଳସ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କର୍ମ କରି ଚାଲ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। ତେବେ ଏବେ କୁହ, ମଣିଷର ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା? କଳି ଯୁଗରେ ତ ମଣିଷର ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ ହବାକୁ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଇଲୋ ବାପା, ମୋ ସତ୍ତା କେମିତି ରହିବ? ମୁଁ ଗୋଡାଣିଆ ହେଇକି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି, ଆଉ ୟାକୁ ଚାହା କପେ, ତାକୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ? ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଯଦି ସ୍ଥିତିବାନ ହେବି ମତେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିତିବାନ କରିବେ ନା ମଣିଷ ସ୍ଥିତିବାନ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆମ ଆଶ୍ରମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ। ଠାକୁର ଥରେ କହିଲେ, ସିଏ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ଯୋଉ ମୁଁ ଖୋଲା ଖୋଲି କରୁଛି, ବିରଞ୍ଚି ସାର୍ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଟିକେ ଜୋରରେ ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲା ଇଏ ଏମିତି କଣ ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଧୀର ଶିସ୍ତ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଚାଲିବା କଥା। କହିଲେ ତା ବାବଦରେ ତମେ କଥା ପଦେ କହିପାରିବ? କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରେଇଛି ମତେ ତମେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା ଅବଜ୍ଞା କରି ରୁଦ୍ରୋହ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହବ? ତେଣୁ ଏବେ କୁହ, ମତେ ଯଦି ସ୍ଥିତିବାନ କରି ଆସନ ଦେବେ ଠାକୁରେ ଦେବେ ନା ମଣିଷ ଦେବ? ଠାକୁରେ ଦେବେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କର ଶରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ କରି ଚାଲ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଲେ କଣ ହବ? ବାୟା ବାବା ବାୟା ଗୀତରେ ଲେଖିଦେଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? ତିନି ପୁର ଲୋକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷ, ତିନି ପୁର ଲୋକ কি করি মারিবে যাহার গুরুদেব সপক্ষ, কি করি মারিব যাহার গুরুদেব সপক্ষ, কি করি মারিব যাহার গুরুদেব সপক্ষ। बोल गुरु नारायण चरमनाथ। कहिले कौन कहिले? कहिले तीन पुर लोक जहार होई थांतु विपक्ष, कि करि पारिबे जहार गुरुदेव सपक्ष। गुरु जहार सपक्ष रे जिवे तीन पुर लोक लागिले भी किछि करि पारिबे। मत कह दुर्योधन 11 खणी नारायणी सेना धरिक गला
भगवान कृष्ण कहले तथास्तु तोर इच्छा जहा पूर्ण धरित्री जा आजा 11 अखोणी सैन्य महाभारत युद्ध रे चितापट नेली ना अर्जुन जो एक माधिया 32 फल कृष्ण को चाहिला सी चितापट नेला जितापट किए नेला अर्जुन नेला तेरे सजन वृंद 11 अखोणी सैन्य किछि करि पारले ना तेन गुरुंकर कर्म कर बुझिपाल हनुमान से दिन इष्ट चेतना जाऊँच जय श्रीराम कही बाटरे कालनेमी राक्षस अटकईला से दिन जानिच ना जान रावण पठेला ना कला कालनेमी से हनुमान कुआडे जाऊँच निशल्यकरणी धरिकी आसो लक्षण बंचीज राति गोटाक पाईगला मात्रे लक्षण आ बंचब ना तार मृत्यु आउ से आयुष पाइब ना विधिर विधान रातिटा खाली तू हनुमान को अटकई दे सूर्य उदय हो तो कथा सला तू फ्री एति खाली मोर कथा कह कालनेमी राक्षस रावण पठेला कला जा टिकला कौन करी कला टिके हनुमान को अटकई दे कला मु अटकई को हनुमान कथा कहू जो हनुमान लंका पुड़ी जाइतला कला हो से हनुमान जे लंका पुड़ी जाइतला कला कि हनुमान तुम तो बुद्धि से दिन रावण तुम तो पाइल हनुमान जो दिन लंका पड़ा तुम बाहर को कड़े जाइल ना लंकार थी पर गाँ को पड़े कहला नहीं लंकार थी कहला तुम तो थी जे किसी कर मत पठाऊँ जा तू कामटा करदेबू बोली तुम तो से दिन निजे थिल तुम तेल तुम डियासिली काठी तुम कपड़ा तुम एडे निर्बोध जे तुम निआरे तुम उस जाड़ी पड़ी पांच कल चारि वेदर अधिकारी हे बुद्धि कटई पारल ना आ मत कहते बुद्धि कटा तू जा अटकई हम रावण कला जीव कि नहीं कह ना भारी असुविधा हम जाऊँ कालनेमी राक्षस बाट अटकईला से दिन हनुमान को अटकी पारला कि इष्ट चेतन जी थी गुरुंकर चिंतन जी थी गुरु मंत्र प्रदत्त बीज मंत्र को जी अहरह जपगान करुथिबो तेबे भाई भौणी माने कौन हम 3 पुर लोक ताकू विपक्षवादी होता ता विरुद्ध जावाक चेष्टा करूँ 3 पुर लोक जार होता विपक्ष कि करें जार गुरुदेव सपक्ष आउ पदटी बाया बाबा कौन कहले 3 पुर लोक सहाय श्री गुरु विमुख होइले तार नाही उपाय श्री गुरु विमुख होइले तार नाही उपाय श्री गुरु विमुख होइले तार नाही उपाय सचिदानंद चरमनाथ तले 3 पुर लोक जहार होई थांतु सहाय श्री गुरु विमुख होइले तार नाही उपाय गुरु जदि विमुख हो गले तमरा उपाय नहीं तमे 3 पांजीरु गल तबे कह मनीष को संतुष्ट करिया पे चेष्टा करिवो ना गुरु को संतुष्ट करिया चेष्टा करिवो मो ठाकुर कहले कौ दिन ठुतु गोडाणिया हवा बुद्धि पाइलु कहनी ठाकुर कहि तेन सजन वृंद मो कहिबार तात्पर्य आमे पर्यंत धर्म संस्थापन पाई निजको प्रस्तुत कलेनी कि गुरुंकर आज्ञा पालन पूर्वक संजे सकाळे कर्मयोग अभ्यास कले कहले तू जहा पाइबू ताकू जगत कल्याण रे लगे आज ये कर्मयोग अभ्यास संजे सकाळे करूनी से कोनटा पाइब जे जगत कल्याण रे खर्च करियो कोन कहउचंदी तेबे आज जदि धर्म अनुष्ठान मानकरे वाद विसंवाद थाए ए पृथ्वी गोटाक जाकरे सेठी असुविधा कोन होउची ना प्राथमिक अवस्था रे गुरुंक प्रति शरणापन्न होई उत्सर्गीकृत भाव नहीं आसिले जेते बेले पसिला परे से उच्च आसन पाई गले सेते बेले मूल कथा को कर्मयोग को भूली गले तेबे कर्मयोग होउची मूल कथा भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय गीता सांख्य योग 50 नंबर श्लोक रे कोन कहले योग कर्म सुकौशलम कौन कहले योग कर्म सुकौशलम कर्मटा धर्म हम केमिति ना कौशल पूर्वक कले कौशल पूर्वक कले कर्मटा हो धर्म सबु कर्म धर्म नुहे ठाकुर कहले चरम सांसारिक समस्त जंजाल भितर गुरुंकर कार्य सर्वादौ करणीय लोक तो घर काम पड़ा ठाकुर काम को जाऊना आमर मधु भाई आश्रम
कोठिक फासी मारला कोठिक आसुचंदी यज्ञ घर तैयारी करिया पाई हेपटे तांको घर छात पड़िबो ठाकुर कहले मो घर तैयारी करिबु ना तो घर करिबु मधु भाई कहले नाही नाही म आपण तो घर करिबु कहले तबे जा यज्ञ घर करिबु ये यज्ञ घर करि आइले हेपटे ठाकुर ध्रुव भाई आदि की पठेइले कहले से मधु घर छात पड़िबो टिके इंदिरा आवास घर पाइछि गल टिके हेटा कामटा करि दबो मधु माने मधु भाई कोनटा करि थांते ताको घरे थिले मते कहलो कोनटा करि थांते बरं अलगा गुरु भाई माने एमिति लागिले जे तांको छात होलिया छात हे हरि हरि तांको स्त्री एपटे मरि जाइचंती स्त्री ठुकिए बड़ कह आजकल तो मो बड़ बापा मरि जाइछि मो जाई परिबेनी कहउचंती किंतु स्त्री मरि जाइछि कार मधु भाई से आसिचंती यज्ञानुष्ठान कर्म करिबा ठाकुरଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ कर्म तेरे कहले राति पाइब कथा सरी मो प्रभुंकर लीला तेरे एई केन्दुझर माटीर जने मो प्रभुंकर अनन्य भक्त किए जगन्नाथ भाई कॉलेज रे चाकरी करथिले आपण माने ताको भलो कि चिन्हिथिबे ठाकुरଙ୍କ सहित एमिति उत्तह कथावार्ता करंती थर गोटी घटनाटी कहूची भाई मोर केते समय करिब ये थरे श्याम भाई को घरे आसी ठाकुरे अच्छा अच्छा श्याम भाई सकाल सकाल फोन कर दे बोले जगन्नाथ भाई गुरु स्वामी बोले कौन को बोले आम घर को आसला बोले श्याम भाई तो मत फोन करवाटा एत सहज कथा नुहे पुणी एत सका ये गोटे समझदार पैसा रही काफी जाना लोक को बाट पड़ी अच्छी न जाना लोक अंध सुजन हो आलिराणी महाबंध तेणु जगन्नाथ भाई कहले श्याम भाई ठाकुर आसते कि कहले हाँ से जाकर पहुँची ठाकुर पाखे जिते जगन्नाथ भाई पहुँची गले आहा ठाकुर पाखे बसी ठाकुर तरफ कहते तुम भितर अनेक जानवर जिज्ञासा अच्छी ना जगन्नाथ भाई जड़े कॉलेज चाकरी कर उच्च शिक्षित लोक कौन कही संतुष्ट करें बुझीपार ना से गीतार पारंगम गीता यज्ञ करने सिद्ध मठरे से भली जड़े व्यक्तित्व से भली जड़े पर्सन तेणु ठाकुर पाखे बसी ठाकुर कहते तुम भितर जानवा को बहुत जिज्ञासा अच्छे कहले हाँ कहले आज कौन जानवा इच्छा कर प्रभु ये पृथ्वीटा घूरुची आमे ता भितर अछंती कहले हाँ तो हेडु कहले कौन जानवा इच्छा कर कहले पृथ्वीटा कौन तार संपर्क टिके जानवा इच्छा ए जगत जाकर लोक मो ठाकुर दशम श्रेणी जाके पाठ पढ़ी बोली जानी नहीं जदि जागतिक दृष्टिकोण चिंता करिबो केशव ठाकुर को जाके पाठ पढ़ी दशम श्रेणी किंतु कॉलेज रे चाकरी करिथिबा जगन्नाथ भाई को ठाकुर कहले गोटे कागज टाण पेंसिल टाण ये जते ज्ञान विज्ञान आगु पढ़ी थिले ए पर्यंत ठाकुर कागज टिरे धरी पेंसिल टिरे धरी पृथ्वीर अक्षांश द्राघिमा ठारू आरंभ करी महाविश्व रेखा ठारू आरंभ करी ये सबु जाक एमिति पृथ्वी घूर्णन एमिति भाबरे ऋतुचक्र एमिति भाबरे प्रत्येकटी हृदय रे क्रिया एमिति पृथ्वी तत्व को बुझाई देले जे बहुत समय पर्यंत मुंडरे हाथ धरी खाली बहिले को चिंता करी हबनी मुझे सब कहे मो प्रभु पाखे बसिले गोटे पद कथा शुणिले केमती लगे कहल मु समुद्र कूल छिड़ा आखिटा जाऊँगी जो जगह जाऊँगी आग को पाऊँ मो ठाकुर पाखे बसिले यही लगे जी हृदयग्राही व्यक्ति लगे जे मु बसी पाखे किंतु आखि पाऊ ना एमती ठाकुर मो ठाकुर तेणु जो जगन्नाथ भाई को ठाकुर पृथ्वी गार टाणी पुणी केते जानी सकाल 7टा रू दिन 2टा दी जन जाक गोटे जगार बसी ठाकुरे गार टाणी टाणी बुझाऊँ खाली पृथ्वी संपर्क में समस्त कथा जिते जगन्नाथ भाई मुंड किसी कम कला से पाद धूली कहते प्रभु गोटे कथा कह रखिए कहले कौन कहले मत मृत्यु दियंतु ठाकुर हसीदेले कहले एमती कहीं कह कहले मुझे पाइली आपण किए बोली तो जानीदेली ये कथा एगुड़ाक तो मुंड किसी काम करूनी तेरे जीवन तो सब किसी पाइली आउ पाइबा किसी बाकी नहीं मत
मते आ लागुनी पृथ्वी रे किछि अछि गोटे प्राप्त होबा को किछि आशा आकांक्षा किछि नै सब सरी गला मते आपण नै जानते मु मरि जीवा को चाहे एटु ठाकुरे हसी देई कहिबे जीव जे कोन तब इच्छा जीव कहले ना इच्छा तो मोर नुहे इच्छा तो आपण कर कहले तबे गले कोन लाभ हो तुम भलिया लोक तो सब बारे दरकार हमर पडुछि जे तमे जीवा को इच्छा करिवो तम कथा रक्षा करी मन कर नै जीवी पुणी आनी करी आ गोटे जन्म देई देबी लाभ कोन पाइबो पुणी तो आसवा को पड़िबो कहले प्रभु पुणी आसवा पड़िबो कहले हमर जो माने काम करिवे से बारंबार आसुतति जाउछन तमे कहिबले गणिकार मो ठाकुर कोन लिखिले कहले जी हमर प्रकृत भक्त आमे ताको मुक्ति मुख्य निर्वाण जाची देले विषय ग्रहण करी हरि हरि बोला तबे जी प्रकृत भक्त से कोन चाहे मुक्ति चाहे ना से कोन चाहे प्रभु जेबे आसुथिबा जगनी आकु नरदन धरि एटा समस्त कथा नुहे एटा केशव ठाकुरंकर भक्तर अंतर्निहित कथा हरि हरि बोल मोर मुक्ति मुख्य निर्वाण दरकार नहीं प्रभु लाज निंदा पाउथिबी अपनिंदा करुथिबे लोक बाटरे कंटा पकई दउथिबे मो गाड़ी जेमिति लीक हेई जाव एभली सब प्रकार घात प्रतिघात बाधा बंध आसुथिबो तारी भितरे तमे मते टिके करुणा कटाक्ष प्रकाश भक्त जन दुख नाश तुम्हें करुणा दृष्टि रे मते टिके चाहि दउथिबो ठाकुर तमे जदि करुणा दृष्टि रे टिके चाहि दउथिबो ना मु पर्वत लंघन करिवि हरि हरि बोल हे अगर दूर मंजिल तो क्या रास्ता भी है मुश्किल तो क्या हे अगर दूर मंजिल तो क्या रास्ता भी है मुश्किल तो क्या रास्ता रोकरी न मिले तो पिता दीपक जलाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है बसे उस पार जाना पड़ेगा कहले हे अगर दूर मंजिल तो क्या लक्ष्य स्थल दूर ही पारे लक्ष्य स्थल रे बाधा बंध आसी पारे किंतु लक्ष्य स्थल जीवा पाई मु आपनकर मसाल को पर लक्ष्य करिछि तेणु आपण लक्ष्य स्थल देखै दैचंती आपण रास्ता देखै चंती पुणी अंधार रास्ता को आपण आलोकित करिछि तेबे मोरा उसुविधा कोन मु लक्ष्य स्थल रे पहुंची तेबे दरकार कोन अछि दरकार अछि मोर मनोभाव मो हृदय को मु दृढ़ करी मो प्रभु को कर्म करिया पई धरा पृष्ठ को आसीछि अन्यथा मोर अल्लाह कोउथरे मुंड पुरैबार नाही बुझिला कथा कि तेबे अन्य चिंतन है विषय को त्याग करी विश्वेश्वर चिंतार लगी रुहतु आज जतिक दिन रहा आ जीवन तो पानी फटका बुझीपार कथा मुझे आमर प्रमोद भाई आसला सी कहे आ पूर्व खाली एति कहे एवं तो धीरे धीरे मत 50 वर्ष है देह पा धीरे धीरे खराब हो जाए कम दिन तले प्रभु को नवेदन कर गोटे भजन लिखी पदे अधे गाई दूसरी जदि कह गोटा गाईदेवी ना शेष कथा यह हूँ चिरंतन सत्य जात ही ध्रुव मृत्यु तेणु मुझे अच्छी काली की नथी कि ठाकुर बंची थी जाके प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त तुम चिंतन रही तुम काम लगी रही यही भावना यही कल्पनार सहित आपण मैंने समस्ते आशंका दिन गुड़िक काटी दिखते मृत्यु पर्यंत से जीवन सार्थक केवल काम सुजोग आमको मिलू 5 दिन रे ब्रह्मज्ञाकर शांति महायज्ञ मु तो कहीदेली मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं हरि हरि बोल
तेरे आज कथा वस्तु विश्राम देवी आम पुणी प्रमोद भाई को शुणा ना तेजस्विनी उजस्विनी बाणी हो तेरे आज कथा वस्तु को विश्राम देवी कथा कह मोर शब्दगत भावगत भाषागत हाँ आज मीमांसा कौन है सार कथाटा ना पृथ्वी गोटाक जाकर धर्म संप्रचार चली किंतु धर्म प्रतिष्ठा जो भावना दरकार विचारबोध दरकार हृदयर आवेग दरकार सम्वेग दरकार सेटा जे पर्यंत हृदय भितर समस्ते सजाग होना जागरण करना से पर्यंत एगुड़ाक केवल स्लोगान एटा मो ठाकुर कहले तेरे आम समस्ते से स्लोगान भितर रहिबा ना वास्तवता आड़क जीवा वास्तवता आड़क तेरे हो जाऊ बोल आनंद चरमनाथ की जय खाली कहवा ना चरमनाथंकर जय करवा चरमनाथंकर जय तबे कथा वस्तु विश्राम देली कथा कहबार जदि भागवत भाषागत भूल त्रुटि था भाई भौणी मान निज निजर क्षमा गुण रे मते सानो भाई टी भाई क्षमा करिवे परिशेष रे सबु तांको पाद तळे समर्पण करी ज्ञान धन मन सब किछि तांको पाद तळे समर्पण करी आज बाणी सेवार विरति देली हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशव शरणम श्री गुरु स्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम बारांतरे आपनक सहित पुनश्च तबे देखा हबो से अभिलाष पोषण करी हृदय आज पई समस्त ठारू विदायकालीन सप्रेम गुरु स्वामी प्रणम भूलिया नंद गोवान हरि हरि